Hi everyone, I am Shalu Popley, your conscious frequency coach. Welcome to my channel, and today I'm going to talk about how to not give away your power. How to protect your freedom. अपनी freedom को कैसे protect करना है. And what are the scenarios जब हम अपनी power give away कर देते हैं, दूसरों के हाथ में दे देते हैं, right? जिससे कि हमारी freedom चली जाती है and later we regret, later we face the negative consequences. ठीक है. अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई एंड शी वॉज रियली इन मिजरेबल सिचुएशन. द सिचुएशन वॉज लाइक कि वो अपने ही घर में एक तरह से जेल में बंद थी. उनको कहीं पे आने जाने की मनाही थी, उनको किसी से बात करने की मनाही थी. इवन वो अगर अपने ऊपर कुछ थोड़ा बहुत खर्चा भी करना चाहे, शी वॉज नॉट अलाउड टू डू दैट. Earlier, before marriage, she was doing her own job, and some issues happened in her family, and whatever her family said, family means in-laws side, husband, all those people said, she just kept on saying yes, yes, yes to everybody. Okay, and the situation was like कि उसके ही घर में उसके ऊपर कैमराज लगा के रखे हुए थे, माइक्स लगा के रखे हुए थे. somehow she was able to get to her parents' house, and from there she had this session with me. She contacted me that what should she do now, है ना. The situation was so extreme that we didn't have any chance but to go for a divorce. सो ऐसी सिचुएशन आने ही क्यों देनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसी सिचुएशन आती क्यों है? ऐसी सिचुएशन तब आती है जब आप अपनी वैल्यूज़ से, अपनी फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरों को हर चीज़ के लिए हाँ कर देते हो, है ना. दूसरे बोल रहे हैं यू हैव टू लीव योर जॉब एंड यू से येस, बट एक्चुअली यू डोंट वांट टू लीव योर जॉब. सो नेवर टेक अ डिसीजन, नेवर से अ येस टू अदर्स दैट इज़ अ नो टू योर सेल्फ. So when I say that we should not give away our freedom, I mean that the three main freedom points. Yes, our freedom to talk, that we should be allowed to talk to anybody that we want to, right? Who are others to decide that for us? Yes, our freedom to walk. If I want to go somewhere, I should be able to go that. I should be allowed to go that. Why would somebody restrict me to go somewhere? I am also wise. I also have a brain. I can think. I am adult, right? I can think what is good for me, what is not good for me. So I shouldn't give this power away to someone else that they will decide where I should go and where I shouldn't go. Yes? And third one, very important one, our freedom to self-care. अगर मुझे ऐसे लगता है मेरी हेल्थ के लिए, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ अच्छा है and I want to spend something on myself, I should be allowed to do that. Nobody should stop me for that. है ना. लेकिन ये कैसे आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए कि मेरी ये वैल्यूज़ हैं विच आर नॉन नेगोशिएबल, जिनके ऊपर मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी. इन केस समबडी टेस्ट्स दीज बाउंड्रीज, है ना, कोई आपको बोलता है कि आपको ये सब नहीं करना है, यू शुड इमीडिएटली से नो टू दैट. यस, द इश्यूज मे बी देयर, द चैलेंजेस मे बी देयर, वर्क ऑन द चैलेंजेस, बट बाय नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर फ्रीडम. है ना. रिलेशनशिप में कहाँ पे इश्यूज़ नहीं होते हैं? इफ़ वो बोलते हैं ना, दो बर्तन होंगे तो खड़केंगे ही, राइट, आपस में खटकेंगे ही. तो अगर बर्तन है तो खटकेंगे ना. क्यों खटक रहे हैं, उस पर वर्क करो ना. वाई यू हैव टू जस्ट कीप वन बर्तन इन टू द ड्रॉअर ऑलवेज सो दैट इट डजेंट come out even and there are no challenges. It shouldn't happen that ways. Yes, and अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना बहुत 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 ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? ताकि हम रिलेशनशिप्स को अच्छा बना सकें. हमें ऐसे लगता है कि बाउंड्रीज़ हमने सेट कर दी मतलब हम दूसरों से दूर हो गए. नो, बाउंड्रीज़ हेल्प्स अस एज वेल एज अदर्स टू मेंटेन आवर रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, somebody is asking you to go somewhere with them, along with them, and you don't want to go there, and you just think that let me say no, and you are saying no to them in a way that they think you are saying a no to them. Say it in a way कि आप उनको no नहीं बोल रहे हो, आप खुद को yes बोल रहे हो. There is a difference. It's not a no to them, it's a no to that event, है ना, and it's a yes to you. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कोई बोले आज मेरे साथ यहाँ पे चलो या कहीं पे भी चलो, एंड आई हैव ऑलरेडी माई प्लान्स,
या तो मैं बोल दूंगी नहीं यार मैं नहीं जा सकती, आई एम सो सॉरी. They may feel bad that a direct no is coming, right? Or the other way I can use is, I would love to go with you, but today I have my plans. I hope you understand. Next time, please inform me in advance. I would plan to go with you. है ना? This way they are understanding that you also have your own plans, or you also have your own priorities. That's why you are not coming. It's not a no to them. So हर चीज़ को communicate करने का एक तरीका होता है. यस बट वो हम कैसे करते हैं उस पर हमारे रिलेशनशिप्स डिपेंड करते हैं. नाउ मैंने अपनी बाउंड्री सेट की कि मेरी प्रायोरिटी, मेरी चीज़ मेरे लिए पहले इंपॉर्टेंट है, राइट? दैट इज़ ऑन प्रायोरिटी. सो आई हैव टू से नो टू देम. आई सेड नो टू देम, आई सेट द बाउंड्री. नेक्स्ट टाइम व्हेन दे विल आस्क मी, दे विल फर्स्ट चेक वेदर आई हैव एनी प्लान्स और नॉट. यस, अगर मैंने डायरेक्टली किसी को नो बोल दिया, वो क्या बोलेंगे? शी इज़ सो रूड, she never comes with me. They will form their own perspective because I did not communicate in a very well way, है ना? And next time हो सकता है वो मुझसे पूछे भी नहीं. एंड फिर क्या आ जाता है? रिलेशनशिप में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है. इट इज़ लाइक, पता है क्या होता है? हम लोग ना हर किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. हम सामने वाले को ऐसे बोलते हैं, नाउ यू आर अ परफेक्ट पर्सन, आई हैव दिस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, नाउ यू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस. And when they don't perform according to that, we form perspective कि सामने वाला person doesn't care for me, जबकि ऐसा नहीं है. Did you communicate your expectations to them? In most of the cases, no, we don't do that. हम नहीं करते हैं वैसा, है ना? तो अपनी expectations अगर हैं तो उनको communicate करना बहुत ज़रूरी है. सामने वाला उनसे comfortable है या नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है ना? इट इज़ द सेम वे, अगर कोई मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और मुझे नहीं पता है वो चीज़, हाउ वुड आई फुलफिल दैट? और बाय चांस आई मे फुलफिल दैट एज वेल, लेकिन हर टाइम नहीं, राइट? सो रिलेशनशिप को नर्चर करना बहुत ज़रूरी है. जैसे हमें गुड हेल्थ चाहिए तो हम वर्कआउट करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, राइट? हमें अच्छे मार्क्स चाहिए तो हम पढ़ाई करते हैं. वैसे ही अगर हमें अच्छे रिलेशनशिप चाहिए तो हमें उन पे भी मेहनत करनी पड़ेगी. कोई भी परफेक्ट बन के नहीं आता है. वी हैव टू ट्रेन पीपल, वी हैव टू ट्रेन देम टू सपोर्ट अस, टू लव अस बाय गिविंग दैट लव एंड सपोर्ट टू देम, है ना? अगर हम चाहते हैं कोई हमें जज नहीं करे, पहले हमें उनको जज करना बंद करना पड़ेगा. रिलेशनशिप्स में यूजुअली क्या होता है ना, पहला कॉन्वर्सेशन हुआ, सपोज देर वर सम डिसएग्रीमेंट्स, उसके बाद हम उस गैप को बढ़ाते चले जाते हैं. बट कॉन्शियसली इफ़ वी नर्चर दैट रिलेशनशिप, अगर वो रिलेशनशिप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वी कैन एक्चुअली मेक सच पीपल आवर चीयर लीडर्स. इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, लेकिन हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा उस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना पड़ेगा. सो डोंट गिव अवे योर पावर्स, बी वेरी क्लियर ऑन योर नॉन नेगोशिएबल्स, कि ये मेरी टर्म्स हैं जिन पे मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, है ना? एंड इन केस एनीबडी वॉन्ट्स मी टू डेविएट फ्रॉम दैट, डिसाइड ऑलरेडी कि इसमें मेरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होगा, सो दैट द अदर पर्सन डजंट फील ऑफेंडेड, राइट? इफ somebody is saying leave the job, first check on yourself. Do you want to leave the job? Don't leave because they are saying, because later you will regret that decision and then you will blame them as well कि आपकी वजह से मैंने छोड़ा इसलिए ऐसा हुआ. If somebody is saying कि हमें कैमराज लगाने हैं, right, what you are doing whole day, you can say that, what is the problem, what is the challenge, let's discuss that. Why do we need the cameras in home? If somebody is saying that do not close your door while sleeping with your husband, is this something we should say yes to? If you are saying yes to that thing, that means you don't own anything, right? हम लोगों को खुश करने में इतना वो हो जाते हैं ना, अपने आप को एक तरह से बिछा देते हैं कि नाउ कम एंड वॉक ओवर मी, एंड देन फिर हम बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा किया. नो, यू अलाउड दैट, you accepted that. Why didn't you raise your voice at that time?
अगर आप उसी टाइम पे उसको हैंडल कर लो, मैनेज कर लो, तो इतनी सिचुएशन ही नहीं आएगी ना वेयर पीपल आर सेइंग कि वी हैव रिकॉर्डेड योर वॉइस, यू स्पीक सो बैडली अबाउट अस, नाउ यू डोंट हैव एनी राइट टू स्पीक इन आवर होम. First of all, why did you allow them to install the mics there? Right? So these are few things that are coming these days कि लोग अपनी चीज़ें भूल जाते हैं कि वो किस चीज़ को yes बोल रहे हैं, and then उसके consequences उनकी लाइफ में होते हैं, and then they blame others. इसमें मैं किसी की गलती नहीं बोलूँगी बिकॉज वी आर कंडीशनड लाइक दैट. वी आर पीपल प्लीजर्स बाय डिफ़ॉल्ट कि सामने वाले को कैसा लगेगा. चलो इतनी सी चीज़ करने से अगर मेरा रिलेशनशिप बच जाता है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, लेट मी डू दैट. नो, आपको अभी ऐसा लग रहा है. यू ऑल्सो हैव योर लाइफ, योर प्रिवेसी. वाई वुड यू अलाउ दैट? एंड इफ इन ऑन दोज टर्म्स दे अग्री, I don't think that relationship is worth living in. Yes? So please be careful how you communicate. What are your boundaries that you are compromising on? Yes? Please work on that consciously and save your relationships, guys. Yes. And just think how you can nurture those relationships. Those are important for you so that you can have or build fulfilling relationships. Yes, so that's about it for today. I hope you got my message that please set the boundaries, please be very clear upon those and use a polite way to communicate those. कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, ठीक है. हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारा पर्सपेक्टिव उनको उस तरीके से बिहेव करने पे कंपेल करता है. राइट अगर किसी के साथ मेरी टर्म्स अच्छी नहीं है, नाउ मेरा पर्सपेक्टिव है ये इंसान अच्छा नहीं है. अब मेरा दिमाग हर उस एक्सपीरियंस को हाईलाइट करेगा जो मेरा उनके साथ अच्छा नहीं गया. आई विल बी जजिंग दैट पर्सन, आई विल बी पिन पॉइंटिंग दैट पर्सन, आई विल बी ऑलवेज फाइंडिंग सम और द अदर एक्सक्यूजेज टू फाइंड द नेगेटिव इन दैट पर्सन. है ना, one of my mentors says that wherever the focus goes, energy flows. Wherever the energy flows, it enhances. तो अगर आप किसी में बुरी चीज़ें ही देख रहे हो तो वो बुरी चीज़ें और enhance होंगी. Give it a chance. Give them a chance. Yes, I'm just saying this for the sake of saving the relationships. लेकिन कुछ relationships ऐसे होते हैं where people say they are narcissists. Right, so we need to be aware of such people as well. We need to be careful. So in those cases especially, we shouldn't be a doormat for them. We shouldn't be people pleaser over there. So be careful there on that side as well. Yes, with this I end this video here. I hope you got my message and share your viewpoint with me in the comment section and stay blessed, stay happy.